Hello guys, my name is Manisha from St. Wilfred College of Arts, Commerce and Science, Panvel. In this lecture, we discuss about the green technology. This subject is for FYCS semester 2. So, what do you mean by green technology? Okay, green, that is environment. हम हिंदी में इसको बोलते हैं पर्यावरण. Okay, so इसके में हम लोग देखने वाले हैं outline. In this outline, we discuss about the introduction. In introduction, we discuss about the sectors of green technology, then strengths from adopting green technology, challenges to the green technology adoption, then recent market activities in green technology, then new green technology, hydro nano gas, then air powered gas. Green is the next wave in a flat panel display and India's part in the green revolution. Guys, in this lecture, we discuss only about the introduction part. Okay. So, यहाँ पे आपको दिख रहा है wind turbines भी दिख रहे हैं आपको एक slide में मेरे. Okay, that is the green. Now see how to define the green technology. Especially this lecture is specially for the FYCS students semester 2, FYCS Mumbai University students semester 2. So this green technology is a relatively new field. It is a very new field. Naya field hai, that has grown quickly as people have become aware of their detrimental effects on the environment. Okay, aware of their detrimental effects on the environment, including environment के ऊपर जो अलग अलग इफेक्ट होते हैं उसके बारे का स्टडी. उसमें क्या क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग, ओके, एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट इज द GHG, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. ओके, इट इज अ वाइड इनकम्पसिंग फील्ड. ओके, फिर से एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ ग्रीन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन. See, the green technology is a relatively new field that has grown quickly as people have become aware of their detrimental effects on the environment. That affects including global warming and the greenhouse effect. So see, यहाँ पे आपको दिख रहा है stocking your non-toxic cleaning kit. ओके, नॉन टॉक्सिक मतलब जिसमें केमिकल फ्री होते हैं. ओके, या फिर उसमें लेस टॉक्सिक होते हैं. A green technology covers a constantly evolving group of methods and materials, from methods and practices for generating the energy to the non-toxic cleaning products. ओके, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है. Then see how to reducing the greenhouse gas emission. Greenhouse gas emission को हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, उस पर जाने से पहले हम लोग ऊपर का पढ़ते हैं. ग्रीन टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स. ओके, सो ग्रीन टेक्नोलॉजी में आप एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल सकता है एंड इज श्योरली मच मोर देन अ पासिंग ट्रेंड. सो देखिए, reducing the greenhouse gas emission, हम लोग ग्रीन हाउस गैस को, दैट इज इन शॉर्ट GHG गैस को किस तरह से reduce कर सकते हैं. Did you know greenhouse gases are released when we use the energy? आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस कब रिलीज होता है? जब हम कोई भी एनर्जी यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉम बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स. कौन से फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं? सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, गैसोलाइन एंड डीजल. तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ. ओके, टू सेव आवर प्लैनेट, टू सेव आवर एनवायरमेंट. See, green technology involves, that is green ICT.
Okay, green ICT stands for इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमारे क्या क्या आता है? सबसे पहले रिडक्शन ऑफ CO2 इमिशन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपका CO2 इमिशन है उसको हमको कम करना है। देन रिडक्शन ऑफ वेस्ट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक्स वगैरह आते हैं ना वो। ओके, देन प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, prevention of environmental pollution, then chemical substances management and biodiversity conservation। अभी 4-5 दिन पहले ही न्यूज में बताया था गाइस कि जो अभी जो चक्रवादल आके गए, साइक्लोन आके गया तोते और दूसरा कौन सा यास, तो उसमें बाहर जो सी है, सी वाटर के बाहर बहुत सारा कचरा कूड़ा जमा हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, प्लास्टिक का जो है कचरा सबसे ज्यादा है, प्लास्टिक का कचरा। तो वो हमको किसी तरह से भी रिड्यूस करना पड़ेगा, यूज ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, देन डिजाइन टू सेव द प्लैनेट, किस ऐसी डिजाइन करनी चाहिए कि हम लोग किस तरह से प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। बिकॉज यू डोंट हैव टू बी अ सुपर हीरो टू सेव द प्लैनेट। हम लोग अकेले का काम नहीं है इन्वायरमेंट को सेव करना या प्लैनेट को सेव करना। सबने अगर ये इनिशिएटिव लिया कि हाँ मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं केमिकल फ्री यूज कर सकता हूँ। आपको पता है गाइस, पहले लोग, मतलब मैं भी खुद उसमें, जहाँ पे हमारा कॉलेज था, स्कूल से, हम लोगों ने कभी भी बाइक यूज नहीं की। हम लोग हमेशा 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के अंदर जो रहता था, हम लोग हमेशा साइकिलिंग पे जाते थे। और साइकिलिंग से सबसे ज्यादा अच्छा व्यायाम मुझे नहीं लगता कोई होगा। जब आप ज्यादा साइकिलिंग करते हो ना फ्रेंड्स, आपको कोई भी मतलब अदर दूसरे कुछ प्राणायाम वगैरह करने की जरूरत नहीं लगती, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि उससे पूरी बॉडी आपकी मूव होती है। ओके, सो साइकिलिंग से बेनिफिट क्या है इन्वायरमेंट को? एक तो उसमें आपकी सिर्फ एयर जाती है, ना कोई आपका केमिकल आएगा, ना कुछ आपका गाड़ी का धुआं है, ना कुछ है, ना कुछ है, पोल्यूशन फ्री है बाइसिकल। सो अगर नियर बाय प्लेसेस पे आप रहते हो जहाँ पे आपका नियर बाय जाना आना है, सो अवॉइड द टू व्हीलर्स, यू गो थ्रू द बाइसिकल्स। सो ग्रीन इज इन आवर डीएनए। तो ग्रीन का मतलब क्या है कि हमारे अंदर से आपको लगना चाहिए ग्रीन टेक्नोलॉजी इनसाइड, कि हमको ये जो है तो उसको हम लोग उनको इन्वायरमेंट को किस तरह से हम लोग सेव कर सकते हैं। ओके, दैट इज द ग्रीन टेक्नोलॉजी। आपको दिख रहा है कि ये स्लाइड में भी प्लांट है, आप छोटे छोटे भी पौधे लगा सकते हो, उससे भी काफी ऑक्सीजन आपके घर में आएगा। बाहर की मतलब जो ऑक्सीजन की लेवल है अच्छी तरह से अपने ग्रीन, देखो आजू बाजू में ग्रीन रहता है, जब हम पेड़ को पौधों को देखते हैं कितना दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। सो सेक्टर्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्या क्या सेक्टर्स है अब हम देखते हैं। एक है एग्रीकल्चर, दैट इज फार्म, दैट इज फार्मर्स। एग्रीकल्चर मतलब जो हम लोग बोलते हैं उसको आधुनिक खेती। ओके, अपडेटेड फार्म, जो बहुत सारे मतलब जो सीड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर, देन कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम लोग खेतों में कम पानी में क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या जैसे कि सब्जियां है, फल है, फूल्स फ्लावर्स है, कौन सा हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, सोयाबीन से, ज्वार है, आपका गेहूं है, देन बाजरा है, नाचनी है, वॉट एवर। तो ये आपको क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर वाले जो है रहते हैं उनको पता रहता है कि सॉइल का टाइप क्या है, ये सॉइल में इनका इधर का वाटर का एरिया किस टाइप का है, और इस टाइप के मतलब एरिया में क्या कौन सा ये ले सकते हैं हम लोग, उसमें कौन सी खेती कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे देखिए हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ओके, हाइड्रोपोनिक मतलब क्या है कि केमिकल फ्री, जिसमें केमिकल्स नहीं यूज करते हम लोग, और पानी भी बहुत कम लगता है। ओके, देखिए हाइड्रोपोनिक्स इज द आर्ट, एक कला है, एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग द प्लांट्स विदाउट सॉइल। यहाँ पे आपको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेजेस में कि कोई भी सॉइल यहाँ पे नहीं है। ओके, सिर्फ एक इसके ऊपर बनाया है उन्होंने, कैनल टाइप का जो बनाया है उसके ऊपर, तो उसमें कोई भी सॉइल नहीं है।
So we can grow the plants without soil and use the 60 to 80% less water than conventional outdoor farms. Okay, तो फार्म में जितना पानी लगता है उससे बहुत कम पानी, ओके, हम लोग हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग में लगता है, मतलब 60 to 80% लेस वाटर यूज करते हैं. By recycling the every drop of water the plants don't take. Okay, so it is called as the go green agriculture, that is the hydroponic farming. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, समझ के लेना है, डिस्कशन टॉपिक है. कि आप देखो इस इमेज में आपको दिख रहा है हाइड्रोपोनिक्स में, हाइड्रोपोनिक्स इसमें आर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग विदाउट सॉइल प्लांट्स को ग्रो करते हैं. और जो नॉर्मल जो हम लोग मतलब फार्म के लिए जितना पानी लगता है खेती करने के लिए, उससे 60 to 80% लेस पावर इसमें लगता है आपका. तो आप सोचो इसमें भी हमारी पानी की बचत कितनी हो रही है. ओके, देन सी द सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन, काय म्हणता तुम्ही त्याला, सिंचन, ठिबक सिंचन. ओके, इरिगेशन प्रूवन द इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर द फील्ड. अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है एक ये है वेल है. ओके, वेल वाटर का सोर्स है, यहाँ पे पंप दिया है, बीम से सैंड सेपरेटर हाइड्रोसाइक्लोन एक लगाया है, स्क्रीन फिल्टर दी है, और यहाँ पे हर एक पौधे के लिए बस उसके ऊपर ही जितना पानी है एयर वाल्व मेन लाइन, उससे ही वो क्या कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा 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 पानी उसमें जा रहा है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एयर वाल्व है, मेन लाइन है, देन बॉल वाल्व्स है जिसमें हम लोग टैप के जैसे रहता ना, वाटर को चालू करना बंद करना, लाइक दिस. देन लैटरल फ्लश वाल्व है, एंड स्टॉप्स है, देन पॉलीट्यूब्स है लैटरल, देन सब मेन लाइन है, फ्लश वाल्व है, ड्रिपर इमिटर है, देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेन इरिगेशन. ओके, देन प्रेशर गाउज है. यहाँ पे ये टाइप का अगर हमने ये बनाया, इरिगेशन लगाया हमने फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का वेस्टेज भी कम होगा, वाटर बहुत कम लगेगा, और सॉइल तो इसमें है ही नहीं हमारी, फिर भी प्लांट अच्छे से ग्रो होते हैं. दैट इज द, हमेशा हम लोग कोई भी खेती करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए गाइज, कि हमेशा जो एग्रीकल्चर के जो है आपके आजू बाजू में जो है, जहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में आपको मतलब इंफॉर्मेशन है, उनका ऑफिस रहता है, आप हमेशा उनका सजेशन लेना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए कि वो लोग क्या बताते हैं. देन ISARD प्रोजेक्ट, ग्रीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिस्टम्स थ्रू द वेस्ट रिसाइकलिंग. ओके, वेस्ट रिसाइकलिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी खासी फार्मिंग कर सकते हैं. ISARD project proposes to develop a comprehensive integrated approach of applied knowledge in the field of recycling of organic waste products in agriculture. तो जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग फिर से रिसाइकल्ड करके एग्रीकल्चर के फार्मिंग में उसको यूज कर सकते हैं. ओके, आपको पता है फ्रेंड्स, हम लोग जो प्याज वगैरह खाते हैं ना, प्याज का ऊपर का जो छिलका रहता है हम लोग फेंक देते हैं, उसको फ्रेंड्स कभी फेंकना नहीं चाहिए. आप लोग उससे क्या कर सकते हो, एक एंटीबायोटिक इसके लिए बना सकते हो, पेड़ पौधों के लिए. क्या करना है आपको, बस वो जो रहता है हम लोग जो फेंक देते हैं प्याज के ऊपर का छिलका, उसको आपको लेना है, पानी में डालना है, उसको बॉईल करना है अच्छे से 10 मिनट तक, फिर उसको उस पानी को छान के लेना है. ठीक है, और बस जो स्प्रे बॉटल रहती है उसमें डालो, और आपके घर में जितने भी प्लांट्स है पूरे प्लांट्स के ऊपर आप छिड़क दो. तो वो क्या होगा, एक तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, और जो कीटाणु वगैरह खाते थे वो भी उनको वो नहीं खाएंगे, अच्छे से ग्रो होंगे आपके प्लांट्स. आप थोड़ा सा ट्राई करके देखिए इसमें. Then organic farming. Organic agriculture is an ecological production management system that promotes and enhances the biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It is based on the minimal use of farm input and on management practices. Okay,
एंड यहाँ पे देखो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या कर सकते हो। देखिए ग्रीन लीफ मैन्यूअर्स है, देन क्रॉप रोटेशन है, आपको दिख रहा है इमेज में, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंडरी है यहाँ पे, देन बायो फर्टिलाइजर्स है, मैन्यूअर्स है, एंड वर्मी वर्मी कंपोस्ट है. वर्मी कंपोस्ट मतलब तुम्ही काय म्हणता तुम्ही गांडूळ खत. ओके, ऑल दीज आर द ऑर्गॅनिक फार्मिंग म्हणजे सेंद्रिय शेती म्हणता तुम्ही त्याला मराठीमध्ये, सेंद्रिय शेती, ज्याच्यामध्ये सगळ्या शेती करताना कुठल्याही केमिकलचा उपयोग करत नाहीत. ओके, सो एनर्जी, सी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, सोलर रेडिएशन है, वाइंड टर्बाइन्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, टाइडल पावर है. सो अब तुम्हाला दिसतंय वाइंड टर्बाइन्स इथे दिसतंय, वाइंड एनर्जी. सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक currently largest source of the electricity from the renewable energy. And then the tidal power, at high tide reservoir of water is created which is allowed to ebb. Ebb म्हणजे तुम्ही काय म्हणता त्याला, through the turbines located in the dam. Guys, आपको पता है जो समुद्र के वेव्स आते हैं या फिर काय म्हणता तुम्ही त्याला, समुद्राला भरती ओहोटी येते ना, सो ओहोटी दैट इज एब. ओके, तो उसमें जो फोर्स रहता है, उसका जो पावर रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोर करके रखते हैं. तो डैम के अंदर भी ये हो सकता है. ओके, डैम में भी बहुत फोर्सफुली बहुत बार पानी छोड़ा जाता है, बहुत फोर्सफुली. अगर ज्यादा बारिश वगैरह हो गई तो आप देखते हो न्यूज में वगैरह कि एकदम फोर्सफुली उसको छोड़ा जाता है. देन वेव पावर है, आपको दिख रहा है वेव पावर, यहाँ पे वेव्स की पावर इस डायग्राम में. ओके, तो इसको देखो यहाँ से उसको जो है वेव पावर को हम लोग खींच लेते हैं. देन बायोमास है आपका. ओके, देन लैंडफिल गैस है. सो फ्रेंड्स, ये होता है आपका एनर्जी, एनर्जी सोर्सेस, दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी. तो आपको ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कम से कम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए एक तो पौधा आपने लगाना चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द फ्रेंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पर्सन्स, एज एन ह्यूमन बीइंग, कम से कम आप हर एक साल में एक पेड़ लगा दो. पेड़ मतलब कोई भी पौधा वगैरह. ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. टुडे वी स्टॉप हियर. थैंक यू.